स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आर्टिकल 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, 90 रोज की समाअत हो गई है शुरू। 370 को हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत जारी। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली आईनी बेंच कर रही है समाअत। चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजारों से कहा है कि वो आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। सीनियर वकील नित्याराम कृष्णन ने आज दलाइल का आगाज किया। Stated in the order that because one party has withdrawn and no other political party is ready to form the government, this is why governor's rule was imposed, not because of anything else, not because there was a security issue, not because the state was in any danger, because no political party was willing to form the government. Then what earthly reason had the governor to dissolve the House within 30 minutes of two agencies saying we are ready to form the government? Two political parties. One, a letter, it's what page is this? I'm not going to read it. Page in the petition compilation. Mr. Sibal has already taken us. Yes, I don't want to read it again. So, 56 out of 87 MPs take a claim. The governor is not there. We cannot determine where the governor is, but we can inform him. It is on record that the secretary has acknowledged the WhatsApp message. He does not answer the phone, fax doesn't go through. He is informed on WhatsApp, and a public tweet tagging the governor is issued. By 8:16 this is done, and by 8:57 we are notified that the house has been dissolved. What earthly reason has a governor to dissolve a house when governor's rule was imposed only because no political party was ready to stake a claim? And when political parties are ready and willing to stake a claim, what business has the governor to say, I'm not here, I'm not there? When in this state of affairs, there is a proclamation of President's rule, and the President usurps the power of the state government under Article 371. It is not permissible under Article 356 because it only allows them to take over the function. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज 90 रोज भी इस मामले पर समाअत हो रही है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत जारी है और आज समाअत का 9वां दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज अर्जी गुजारों से कहा है कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। आज सीनियर वकील नित्याराम कृष्णन ने दलाइल का आगाज किया। और चांद पर तारीख रकम करने के लिए उल्टी गिनती जारी है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। मुल्क भर के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इसरो पर हैं। मिशन की कामयाबी के लिए मुल्क भर में दुआएं की जा रही हैं। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरेगा। लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। लेकिन इस कामयाबी के पीछे इसरो के कई साइंसदानों का हाथ है। दुनिया और मुख्तलिफ खलाई एजेंसियां चंद्रयान पर नजर रखे हुए हैं। इसरो दुनिया की बेहतरीन खलाई एजेंसियों में से एक है। माहिरीन का कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि वो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब होंगे। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के आखिरी लम्हात बहुत ही चैलेंजिंग हैं। इसके साथ ही इसरो चौथी एजेंसी बन जाएगी जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। So definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously.
for this event to happen, and I am sure that this time it will be a grand success. Not only now, that is, we have been telling from the beginning, it is a landing is a very, very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So, but nothing to do with the Russians' lander failure. But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. So, but it is a complex process. देखिए, चंद्रमा पर लंबी छायाओं की सुबह हो चुकी, उस स्थान पर जहां लैंडर और रोवर को उतरना है, और सारे देश की आशाएं, सारे देश की आंखें इस समय जो है उसी ओर लगी हैं। और जो आज शाम को जो होने जा रहा है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी के प्रोब ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है। दक्षिण ध्रुव का इलाका जो है बहुत ही जोखिम भरा है, यदि आप वहाँ की ज़मीन की तस्वीरें देखें, और जैसे कि लैंडर ने बहुत सी तस्वीरें भेजी और इसरो ने जो है सोशल मीडिया में शेयर की हैं, उनसे साफ जाहिर है कि चंद्रमा जो है गड्ढों से भरा हुआ है। ऐसे में किसी समतल जगह की तलाश जो है वो जो है वाकई में एक बहुत पेचीदा काम है, लेकिन जो है आप ये देखिए कि इसरो ने इस काम को जो है लिया अपने हाथ में। चंद्रयान 2 के समय जो एक किस्म से हमें निराशा हाथ में लगी, उसके ऊपर हम पार पा करके चंद्रयान 3 को, इसके लैंडर को चंद्रमा की ज़मीन पर आज पहुंचाने जा रहे हैं। सारी दुनिया की आंखें इसरो की तरफ हैं, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण जो है देश में जो एक जागृति जैसी आ गई है, और जो यंग जनरेशन जो है, हमारे युवा वर्ग और बच्चे, वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। मेरे ख्याल में इस अभियान की सबसे बड़ी जो रिटर्न है वो इसी रूप में है। और खबर जम्मू कश्मीर से, सबूर में टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर एहतजाज कर रहे युवा राजपूत सभा के अरकान को हिरासत में ले जाने से मकामी लोगों में बरहमी पाई जाती है। सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों की जानिब से आज बंद की कॉल दी गई है। साबा मार्केट आज दोपहर तक 1 बजे तक बंद रहेगा और एहतजाजी रैली भी निकाली जा सकती है। हिरासत पर लिए गए अरकान को जल्द रिहा करने की मांग की जा रही है। कल साबा राया मोड़ इलाके में नौजवानों ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को 4 घंटे तक बंद करके एहतजाज किया था, और उसे खुलवाने की पहुंची पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उधर इस बीच साबा पुलिस के जरिए हिरासत पर लिए गए युवा राजपूत सभा के अरकान को कठुआ जिला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। युवा राजपूत सभा की जानिब से सरोर में टोल प्लाजा को हटाने की मांग की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों में एहतजाजियों को हिरासत पर लिया गया था। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने KSA के नताज का ऐलान कर दिया है। अनमोल राठौर ने टॉप किया है। लॉ ग्रेजुएट अनमोल ने 1084.5 नंबर हासिल किए। कुल 218 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मेंस इम्तिहान का इनेकाद रवां साल फरवरी मार्च में मुनक्किद हुआ था, जिसमें 3891 उम्मीदवार शरीक हुए थे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने KAS के नतायज का ऐलान कर दिया है। अनमोल राठौर ने टॉप किया है। अनमोल राठौर ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। लॉ ग्रेजुएट अनमोल ने 1084.50 नंबर हासिल किए हैं। कुल 218 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मेंस इम्तिहान का इनेकाद रवां साल फरवरी मार्च में हुआ था, और इस इम्तिहान में कुल जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनकी जो तादाद है वो है 3891। तो 3891 उम्मीदवारों में से कुल 218 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें जो अनमोल राठौर हैं वो सबसे ज्यादा नंबरात के साथ टॉपर बनी है। हिल काउंसिल के इंतखाबात के लिए करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद हुआ है। इसके चलते इत्तेफाक राय से सीटों को तकसीम किया जा रहा है। तब्बस में मोहम्मद अब्बास को उम्मीदवार बनाया गया है। 23 अगस्त ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। तो हमारे NC और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट मोहम्मद अब्बास जो NC के कैंडिडेट है, और कांग्रेस के मैंडेट पे हमने इनको जीएमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। इसलिए जीएमपुर के अवाम से गुजारिश है कि इनके हक में वोट डाल के फिरका परस्त
जो ताकतें हैं इनको हराए और इनको बाहर रखे। आप सबको पता है कि कितना जुल्म करते हैं कि ये पार्टी की इस हद तक कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के असेंबली को कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद इन्होंने रोक के रखा। हम इसके लिए बहुत मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। ये किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज बीजेपी ने इस हमारे नेशनल जो रीजनल पार्टी के असेंबली को रोका, ये एक अदालत से इनके हक में आ गया, लेकिन अल्लाह का अदालत बहुत बड़ा है। वादी कश्मीर में सियाहत के शोबे से किसानों को भी अब फायदा हासिल हो रहा है। जिला पुलवामा के टहाब इलाके में फारूक अहमद नामी किसान ने बागबानी अराजी को ज़रई शोबे में तब्दील करके बेहतर आमदनी हासिल की है। फारूक अहमद के अलावा इस वक्त पुलवामा के कुछ किसानों ने एक्जोटिक वेजिटेबल्स की काश्त शुरू कर दी है, जो कि वादी के सभी अहम सियाहती मकामात पर बड़े होटलों में इस्तेमाल होती है। इससे फारूक अहमद और दीगर किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। महकमा ज़राअत भी इसे बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें चला रहा है। किसान एक्सोटिक वेजिटेबल्स की काश्त करके अपने लिए बेहतर आमदनी का जरिया बना रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि इसमें मुझे काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। तो और ये इसमें रोज़ रोज़ की आमदनी मिलती है। मान लो अगर सेब में 1 साल के बाद मिलते हैं, इसमें हर दिन पैसा मिलता है। तो मार्केटिंग के बारे में बोलूँगा आपको कि जो अभी हमारा जो टूरिस्ट सीज़न है, इस साल रिकॉर्ड हुआ है, करीब 3 करोड़ से प्लस यहाँ टूरिस्ट आ गए हैं। तो जो टूरिस्ट सीज़न होता है, इसमें हमें काफ़ी इसमें अच्छा पैसा मिलता है, काफ़ी डिमांड रहती है इसकी टूरिस्ट सीज़न में। फार्मर 10 इस वक्त जो एग्जॉटिक में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उन्होंने बहुत तरक्की की है एग्जॉटिक इस सब्जी में। तो डिपार्टमेंट ने पहले इनिशिएटिव लिया है, उनको हाईटेक प्रोवाइड किया है 50% पे, और फिर जो सीड्स आ रहे हैं एग्जॉटिक के सीड्स हैं उसको 60% की सब्सिडी पे दे रहे हैं। 60% सब्सिडी पे दे रहे हैं सीड्स भी, और अवेयरनेस काम भी चल रहे हैं। बीच बीच में हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को। खासकर हमारे पास 10 फार्मर ऐसे हैं जो हमेशा डिपार्टमेंट ऑफिस में आते हैं और मशवरा लेते हैं, और हम भी फील्ड में जाते हैं, हमारे सर्कल अफसर भी फील्ड में जाते हैं। इसमें हॉर्टिकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट, और वो भी एक्सोटिक वेजिटेबल, एक नया इनिशिएटिव जो कि सयाहत के शोबे के साथ अब जुड़ गया है। सयाहत के शोबे से इस हवाले से जुड़ गया है कि सयाहत के साथ साथ इसका वाबस्ता है अब, क्योंकि जो यहाँ पर श्रीनगर, पहलगाम या गुलमर्ग के बड़े बड़े होटलों में इनकी मांग काफी बढ़ गई है एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, और उस वजह से जो है फारूक साहब का जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो ये पैदावार करते हैं, तो उनकी मांग बढ़ गई है और इनका रोजगार भी अब बेहतर हो गया है। साथ साथ में देखा जा रहा है कि जो महकमा एग्रीकल्चर है वो भी अब वक्तन फवक्तन इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर की जानिब से जाफरान उगाने वाले किसानों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें जाफरान के साथ साथ बादाम की नई वैरायटी को अपनाने पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम का मकसद पापोर में जाफरान की सनत के साथ साथ बादाम की सनत को बढ़ावा देना है। प्रोग्राम में रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर महेंद्र कुमार वर्मा और किसान बोर्ड के मेंबरान इरशाद अहमद डार भी मौजूद रहे। यहाँ की जो जाफरान की जो खेती होती है उसमें दूसरी फसलों को भी लिया जा सकता है, जैसे दूसरे आपके बादाम है, क्योंकि जाफरान और बादाम है दोनों सूखे इलाके में होता है। तो बादाम की यदि जाफरान के साथ खेती करते हैं तो उसमें मुनाफा काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये हमारा आज सुझाव था कि जो पुरानी जो वैरायटीज थी बादाम की, तो उनकी कीमत अच्छी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो हार्ड शेल्ड होता था और उसमें जो कर्नल की जो रिकवरी होती है वो कम से कम तकरीबन 25 से 30% निकलती है, जबकि जो कागजी टाइप के जो बादाम होते हैं उसमें कम से कम 50% तक उसकी कर्नल रिकवरी निकलती है। तो उसका भाव भी एकदम डबल है, जो कि हमारी देसी टाइप की जो कश्मीरी जो बादाम होता था। इसीलिए हम लोगों ने आज सोचा कि जो हमारे नई इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं बादाम की, जिसमें कि करेंगे कि जाफरान की खेती को बादाम के साथ में नई वैरायटियों के साथ में हमें लगाने की तकनीक को देखना है, जिससे कि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और स्कास्ट कश्मीर की जानिब से कुपवाड़ा में सेरिकल्चर और रेशम की सनत को बढ़ावा देने के लिए कर्मकशों को यूथ फ्राम किए गए हैं और 30 से ज्यादा किसानों को इस स्कीम के साथ जोड़ा गया है ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से स्कास्ट को इस सिलसिले में फंडिंग हासिल हो रही है। पहले मरहले में हमने
30 फार्मर सेलेक्ट किए हैं इन 2 गांवों के। उनको हमने पूरा जो रियरिंग इक्विपमेंट्स है उसमें लो कास्ट रियरिंग हट जो हमारे कॉलेज में बनाया है, उसमें ये आधा उन्नस में तकरीबन 25 से 30 हजार कीड़े ये कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने उनको दिया जो रियरिंग इक्विपमेंट्स है, चाहे इनमें रियरिंग ट्रेज है या लाइट है या जो कीड़े मार दवाई है जिसको हम रेनबो विजेता बोलते हैं, और हमने उनको दिया है लाइम। जिस घर में क्रमकशी होती है, जहाँ भी कोई क्रमकश होता है, उसको स्पेस यानी जगह बहुत कम होती है। उसकी जगह बढ़ाने के लिए हमने एक हट की है जिसको हम अपनी जुबान में लो कास्ट रियरिंग हट कहते हैं। ये हट क्रमकश भाइयों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। उसकी फंडिंग हमको ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने की है और हम कुपवारा में आए हैं। हमने कोई बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए हैं सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वसादत से, और हम ये जो हट्स हैं इन क्रमकश भाइयों तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके फिर आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पुलवामा में मंशियात की काश्त और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई मुहिम के बेहतर नताए सामने आ रहे हैं। पुलवामा के मुतअद्दिद देहात में पोस्त और भंग जैसी मंशियात की काश्त करने वालों के खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। वहीं मंशियात की काश्त को खत्म करने के लिए किसानों को महकमा ज़राअत मुतबादिल फसलों के बीज फराहम कर रहा है। इसके पुलवामा के टहाब जोन में बेहतर नताए सामने आए हैं। लोगों ने भी इस पर खुशी का इजहार किया है। जो नारकोटिक्स है इसमें पापी और भांग आती है, उसको हमने मतलब तबाह किया है मिल के 2-3 डिपार्टमेंटों ने। फिर हमने उसके मुतबादिल में जो सीड्स प्रोवाइड किए फार्मर को, उसमें पीस आते हैं, नवल खोल आते हैं और ख़ासकर पल्सेस दालें आती है। उसने हमने ज़मींदारों को सब्सिडी बेसिस पे प्रोवाइड किया और बीच बीच में जहाँ पे ज़मींदार थोड़ा कमज़ोर है उसको फ्री ऑफ कास्ट पे भी दे दिया है फीस। ये खशखाश वशखाश बंद गवर्नमेंटन दित यह मटर वटर टहब जोन तो 95% कोर खशखाश खत्म। अस यम मटर अस फ़ायदा अत मज तो आइंद कुन तह यह खशखाशस कुन तो आइंद कुन कर सारी उकन तवज्जो मटर वायन अत मज फ़ायदा। अम सह गई लुक वारिया खराब, जवान गई खराब, तो यह पज कर यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है जो एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। तो बाकी जो हैं प्रिवेंटिव लॉज उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और साथ साथ में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कल्टीवेटर हैं उनको ये भी ऑप्शन दिया जाए जो अल्टरनेट जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के क्रॉप्स हैं, ताकि उनका एक जो लाइवलीहुड है वो किसी एक इलीगल क्रॉप की बदले एक अच्छे जो है अभी हमारे जो हाई डेंसिटी क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं उसकी तरफ भी उनको राग़िब कर। सर कितना ग्राफ कम हुआ होगा मतलब कल्टीवेशन के हवाले? अभी देखें अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से या पिछले साल जो
इन 3 महीनों में और इस साल का अभी एग्जैक्ट मेरे पास फिगर्स नहीं है, बट जो कल्टीवेशन लास्ट ईयर हुआ था उससे इस बार कल्टीवेशन कम हुआ है। बानिहाल के चकनाड़वा इलाके में मकामी नौजवान की तरफ से फ्रेंड्स कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर से करीब 2 दर्जन वॉलीबॉल टीमें शिरकत कर रही हैं। इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कौमी वॉलीबॉल प्लेयर और कौमी वॉलीबॉल टीम के साबका कोच डीएसपी सज्जाद हुसैन मलिक के हाथों किया गया। इस मौके पर सज्जाद हुसैन मलिक ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खेल कूद के साथ साथ अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज रखें और मुल्क का नाम रोशन करें। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को समाजी बुराइयों से दूर रखना और इन्हें खेल कूद की तरफ राग़िब करना है। अंडर लाइट्स पहली मर्तबा बानिहाल के बाद हमारे चिनाब वैली में मेरे ख्याल से वॉलीबॉल टूर्नामेंट खड़ी में हुआ था। उसके बाद दूसरा ये टूर्नामेंट है जो अंडर लाइट्स हम करवा रहे हैं। इसका मकसद और रीज़न सिर्फ यही है, हमारे नौजवान जैसे सज्जाद मलिक साहब ने जिक्र किया कि जो गलत काम है, ड्रग एडिक्ट्स में हमारे नौजवान जो है वो आदी हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए हमारा मकसद है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर हमारे नौजवान जो है अपना ताउन देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा नेशन के लिए। ये चकनाड़वा 90 की दहाई याद कराता है, जब ये मेरी सरजमीन है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, पहाड़ी इलाके का बाशिंदा हूँ और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि इतने सालों के बाद मुझे मौका मिला यहाँ आने का। तो मैं इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं ड्यूटी के सिलसिले में भी यही मेरा एरिया आता है और टूर्नामेंट भी खुशकिस्मती से यहाँ आप लोगों ने ऑर्गेनाइज जो करवा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक स्पोर्ट्स जो है ये बहुत अच्छा एक्टिविटी कहेंगे, जो बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिविटी है, वो इसको पॉजिटिव एनर्जी में स्पोर्ट्स के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती सरोर में टोल प्लाजा हटाने का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत में आई हैं। एक ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि मरकजी हुकूमत सरोर में टोल टैक्स की आड़ में बेतहाशा रकूम यानी पैसे बटोर कर जम्मू के लोगों को परेशान कर रही है। इस अवाम दुश्मन इकदाम के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन कोई रद्द अमल या तदारुक देखने में नहीं आ रहा है। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि ऐसा लगता है कि टोल टैक्स माफिया को ताकतवर अफराद की दरपर्दा तायद हासिल है। उन्होंने इस सिलसिले में नितिन गडकरी से मुदाखलत की दरख्वास्त की है। और इसी के साथ JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।